नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पब्लिक डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेसन 14, एक्सेप्ट डेथ, एक्सेप्ट फ्रॉम सोल लेसन एंड सोल पर्पज चैनल मटेरियल। Death is only a gateway to another vibrational level of spiritual existence. Physical mortality is a fact of life. However, everyone's spirit is eternal. Without this understanding, your days become a frightful game of overcome the odds and beat the clock. There is a big difference between only trying to avoid your demise and actually enjoying existence. Notice what is living or dying in your world right now. Physical death is only one aspect of this cycle. All things travel through the wheel of life. All time some are coming into existence while others are fading away. As the body ages, it functions less efficiently, just as you trade in your own worn out cars for new and better models, so your spirit likes moving on to fresh and more energetic vehicles. Death also leads to new birth. The fallen leaves nourish the blooming flowers, and our previous and passing lives feed present and future generations. When your main purpose is no longer to run from your eventual demise, but rather to make peace with it, you can actually begin to live fearlessly. आइए दोस्तों, इसमें दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Soul lesson 14, accept death, accept from soul lesson and soul purpose channel material. Death is only a gateway to another vibrational level of spiritual existence. Physical mortality is a fact of life. However, everyone's spirit is eternal. Without this understanding, your days become a frightful game of overcome the odds and beat the clock. There is a big difference between only trying to avoid your demise and actually enjoying existence. Notice what is living or dying in your world right now. Physical death is only one aspect of this cycle. All things travel through the wheel of life. All times some are coming into existence while others are fading away. As the body ages, it functions less efficiently, just as you trade in your own worn out cars for new and better models, so your spirit likes moving on to fresh and more energetic vehicles. Death also leads to new birth. The fallen leaf nourish the blooming flowers, and our previous and passing life feed present and future generations. When your main purpose is no longer to run from your eventual demise, but rather to make peace with it, you can actually begin to live fearlessly. आइए दोस्तों, हम इसको हिंदी में इसके अर्थ बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आत्मा पाठ 14वां, आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से अंश लिए गए हैं। चैनल सामग्री: मृत्यु आध्यात्मिक अस्तित्व के दूसरे कंपन स्तर का प्रवेश द्वार मात्र है। शारीरिक मृत्यु दर जीवन का एक तथ्य है, हालांकि हर किसी की आत्मा शाश्वत है। इस समझ के बिना आपके दिन बाधाओं पर काबू पाने और घड़ी को मात देने का एक भयावह खेल बन जाते हैं। केवल अपने निधन से बचने की कोशिश करने और वास्तव में अस्तित्व का आनंद लेने के बीच का एक बड़ा अंतर है। ध्यान दें कि इस समय आपकी दुनिया में क्या रह रहा है या सूख रहा है। शारीरिक मृत्यु इस चक्र का केवल एक पहलू है। सभी चीजें जीवन के पहिए के माध्यम से यात्रा करती है। हर समय कुछ अस्तित्व में आ रहे हैं जबकि अन्य लुप्त हो रहे हैं। जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है, यह काम कुशलता से कार्य करता है। जिस प्रकार आप अपनी घिसी पिटी कारों को नए और बेहतर मॉडलों के लिए बेचते हैं, उसी प्रकार आपकी आत्मा ताजा और अधिक ऊर्जावान वाहनों को खरीदना पसंद करती है। मृत्यु भी नए जन्म की ओर ले जाती है। गिरे हुए पत्ते खिलते हुए फूलों को पोषण देते हैं और हमारा पिछला और गुजरता हुआ जीवन वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को पोषण देता है। जब आपका मुख्य उद्देश्य अपने अंतिम निधन से भागना नहीं है, बल्कि इसके साथ शांति बनाना है, तो आप वास्तव में निडर होकर जीना शुरू कर देते हैं। आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आत्मा पाठ 14वां अध्याय, आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से अंश लिए गए हैं। चैनल सामग्री:
मृत्यु आध्यात्मिक अस्तित्व के दूसरे कंपन का स्तर का प्रवेश द्वार मात्र है। शारीरिक मृत्यु दर जीवन एक तथ्य है, हालांकि हर किसी की आत्मा शाश्वत है। हम पिछले अध्याय में इसको भी हम सुन चुके हैं कि आत्मा सभी की जो है शाश्वत है, अमर है। इस समझ के बिना आपके दिन बाधाओं पर काबू पाने और घड़ी को मात देने का एक भयावह खेल बन जाते हैं। केवल अपने निधन से बचने की कोशिश करने और वास्तव में अस्तित्व का आनंद लेने के बीच का एक बड़ा अंतर है। ध्यान दें कि इस समय आपकी दुनिया में क्या रह रहा है या सूख रहा है। शारीरिक मृत्यु इस चक्र का केवल एक पहलू है। शारीरिक मृत्यु इस चक्र का एक पहलू है। सभी चीजें जीवन के पहिए के माध्यम से यात्रा करती है। हर समय कुछ अस्तित्व में आ रहे हैं जबकि अन्य लुप्त हो रहे हैं। जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है, यह काम कुशलता से कार्य करता है। जिस प्रकार आप अपनी किसी पट्टी कारों को नए और बेहतर मॉडलों के लिए बेचते हैं, उसी प्रकार आपकी आत्मा ताजा और अधिक ऊर्जावान वाहनों को खरीदना पसंद करती है। जैसे अपने वाहन जो भी लेते हैं उसको बेहतर मॉडल और नए के लिए हम बेचते हैं, पुराने को नए के लिए। उसी प्रकार हमारी आत्मा जो है पुराने को छोड़कर नई आत्मा के रूप में स्वीकार करना चाहती है, उसके बारे में बता रहे हैं। मृत्यु भी नए जन्म की ओर ले जाती है। गिरे हुए पत्ते खिलते फूलों को पोषण देते हैं। जैसे पत्ते गिर के जो पीले पत्ते होते हैं जो गिर जाते हैं, वो कह रहे हैं कि जो नए जन्म की ओर ले जाती है और फूलों को पोषण देती है। और हमारा पिछला गुजरता हुआ जीवन वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को पोषण देता है। जब आपका मुख्य उद्देश्य अपने अंतिम निधन से भागना नहीं है, बल्कि इसके साथ शांति बनाना है और वास्तव में निडर होकर हम जीना शुरू कर सकते हैं, जब इस चीज को हम समझ जाते हैं, जब अनुभव करते हैं। दोस्तों, इन चीजों को तभी हम अनुभव कर पाएंगे और समझ पाएंगे जब नियमित रूप से ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और संजय संगति करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, दोस्तों से धन्यवाद। थैंक यू।